And a big development coming in within the same case. We are learning in the Swati Maliwal assault case that Delhi court has remanded Arvind Kejriwal's close aide Bibhav Kumar to 5 days of Delhi police custody. Police in fact initially had sought 7 days of remand but has now been permitted to get the 5 days under Delhi police's custody. So that's the big update that we have just received from our sources. We have CNN News 18's Yash Goel joining us on the phone line early this morning. Yash, a very good morning to you. Please walk us through how the trouble continues to mount for the Aam Aadmi Party now that the police has got custody for 5 days at least. Well, a very good morning, Sakshi. In fact, the 5-day custody is what the police got of Bibhav Kumar. In fact, he was presented before the court on late Saturday night. In fact, the Delhi police had initially requested 7 days of custody for Kumar, who was actually produced before the court around 9:15 p.m. In fact, his arrest was shown at around 4:15 p.m. So the charges, if we talk about against Kumar, include the main section includes 354. In fact, it also includes 308, 341. And in fact, 506 and 509 were also invoked. In fact, the additional public prosecutor Atul Srivastav argued for the custody of Kumar, stating that he has been arrested today. The complainant is a public figure and an AAP MP. She was brutally beaten and attacked in a sensitive part. In fact, Srivastav also mentioned that the DVR footage provided on the pen drive was blank and the accused had not shared the password or to his iPhone, which had been informed. So this is actually a very big setback if we look at the Aam Aadmi Party, because we have seen how the Aam Aadmi Party from the beginning was trying to actually shield and protect Bibhav Kumar, and till date they continue to do, because the last recorded statement from an Aam Aadmi Party leader was from Arvind Kejriwal himself yesterday when he gave that very message. And in fact, in that message he reiterated, in fact he didn't went to talk about this very case. In fact, he said how this entire thing was actually one of the classic moves of the ruling dispensation, where once again another Aam Aadmi Party leader is under the radar of the BJP government. Right, Yash. Thank you so much for walking us through all those updates that you have received in this particular case so far. We'll keep coming back to you to receive more developments. Right now, we have got some more political reactions in the same story. Let's take a look at those as well. देखिए, इस देश में कोई यदि सबसे नटवर लाल के भूमिका में कोई देश में नेता है तो वो केजरीवाल है, जिसने पहले अन्ना हजारे को ठगा, दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, दिल्ली में माता बहनों को ठगने का काम किया, और आज देखिए सबसे बड़े लुटेरे कोई है तो केजरीवाल। और स्वाभाविक है, अरबों रुपया कहां से ला रहे हैं? शराब व्यापारियों से पैसा लेकर पूरी व्यवस्था, पूरी सिस्टम्स को बदल दिया और कमीशन ही सीधा बढ़ा दिया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसी को कहते हैं। जो वीडियो सामने आए हैं उससे स्पष्ट होता है कि स्वाति मालीवाल जी गाली गलौज कर रही हैं। उससे स्पष्ट होता है स्वाति मालीवाल जी धमका रही हैं कि किसी की नौकरी खा जाएंगी। उससे स्पष्ट होता है कि स्वाति मालीवाल जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनके चोट नहीं लगी है, आराम से चल पा रही हैं। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो स्वाति मालीवाल जी स्वस्थ तरीके से दूसरों को धमकाते हुए, गाली गलौज करते हुए सीएम हाउस से बाहर जाती हैं, जब वो 4 दिन बाद कोर्ट के सामने प्रस्तुत होती हैं तो वो लंगड़ा क्यों रही थी, वो घबराई हुई क्यों थी? ये जो उनके ऊपर घबराहट या उनकी जो लंगड़ाहट है, वो इसका कारण क्या भारतीय जनता पार्टी है? क्या भारतीय जनता पार्टी में किसी ने उनको धमकाया है, डराया है? इसकी जांच होनी चाहिए। स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं, ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है। जो सारी बातें स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में कही हैं, जो स्वाति मालीवाल जी ने एफआईआर में दर्ज करवाई है। आम आदमी पार्टी का यह तर्क है कि क्योंकि स्वाति मालीवाल या जो भी पीड़िता है, स्वाति मालीवाल को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, कोई अगर रेप की पीड़िता है, कोई अगर आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी की पीड़िता है, अगर कोई महिला के साथ असॉल्ट हुआ है, तो वो महिला अगर रोए नहीं, बिलबिलाए नहीं, उसके कपड़े सारे फटे हुए ना हो, अगर वो महिला के लहूलुहान होने के कोई संकेत शारीरिक रूप से ना दिखाई दे, या अगर वो महिला लंगड़ा नहीं रही है, तो उस महिला के साथ कुछ हुआ नहीं है।
किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मंत्री हो या मंत्री का शांति हो, ये अधिकार तो नहीं है कोई महिला पे अत्याचार करे, कोई महिला पे अन्याय बर्ताव करे, चाहे वो महिला एमपी ना भी रहे, एमएलए ना भी रहे, महिला तो महिला होते हैं। इसके लिए सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो दोषी, वो दोषी को हिरासत में लेना चाहिए, पूछताछ होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस का स्टैंड प्रियंका जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे उस दिन कहा, यूपी में कहीं भी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की कोई घटना सामने आए, कांग्रेस पार्टी उस महिला के साथ खड़ी है और कानूनी प्रक्रिया चलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तथ्यों को सबके सामने आना चाहिए। उसका कौन उनको सीरियस लेता है। जेल से कुछ दिनों के लिए बाहर आए थे कैंपेन करने और देखिए किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। क्या केजरीवाल जी की पार्टी में साधारण महिलाओं की बात भूल जाइए, अपनी महिला सांसद के साथ ये अभद्रता होती है और अभद्रता होकर के उनके तथाकथित पर्सनल स्टाफ पिटाई का आरोप लगता है और उसके बाद उनके खिलाफ महिला लोग क्या क्या बोल रही हैं। ये बहुत ही निचली राजनीति, इतना ही कहना चाहिए। जो भी केजरीवाल का घर में होते हैं वो बीजेपी का ही षड्यंत्र बताता है, लेकिन सती मालीवाल बीजेपी का नहीं है, वो आम आदमी पार्टी का ही राज्यसभा सांसद।